गुड आफ्टरनून। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन इन द प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी वी हैव डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन। एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन कहाँ यूज होना है वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी। उसी के कंटिन्यूशन में और एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड यूनिवर्सिटी द टू आईज डू नॉट कम टूगेदर। ओके, टू आईज, इसमें दो आई हैं और ये पूछा गया इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों आई एक साथ ना हो। इसमें जैसा केस बताया था परमुटेशन में, अरेंजमेंट नंबर व्हेन ऑल आर नॉट डिफरेंट, यहाँ सभी डिफरेंट लेटर्स नहीं है। आई रिपीट कर रहा है दो बार, बाकी सभी डिफरेंट है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, वो टोटल अरेंजमेंट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल, और जो रिपीट कर रहा है आई रिपीट कर रहा है दो बार अपॉन फैक्टोरियल। दीज आर टोटल अरेंजमेंट्स। अब वो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों आई एक साथ ना आए, तो पहले वो अरेंजमेंट्स हम फाइंड करें जिसमें आई दोनों आए। इफ अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in two i's come together, इक्वल टू, अगर दो आई को हम एक मान लेंगे, टोटल 10 थे, दो आई को एक मान लेंगे तो 9 हो जाएंगे। दोनों आई सेम है इसलिए उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, और वो इस तरीके के अरेंजमेंट की दोनों आई एक साथ आ जाए वो 9 फैक्टोरियल। Therefore, the probability that two i's come together equal to, as per mathematical definition of probability, favorable cases upon total number. So these are favorable in which two i's come together. 9 factorial upon total arrangements, 10 factorial upon 2 factorial. So this is 2 ऊपर जाएगा अपॉन 10 बचेगा, 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 5। ये तो प्रोबेबिलिटी हुई कि जब दो आई एक साथ आए उस बात की प्रोबेबिलिटी। पूछा गया है I do not come together. Okay, so hence the required probability, equal to 1 minus 1 upon 5, that is 4 upon 5. This is the probability that in the arrangement of letters of word university two i's do not come together. This is similarly there may be many problems. Another example, what is probability that two m's come together, what is probability that two m's come together in the random arrangement of the letters of the word mathematics. This is, and find the probability that two m's come together in the arrangement of the letters of word mathematics. There is total number of letters 10, in which two m's, two a's and two t. So total arrangements
without any restriction, total arrangements equal to 11 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Since there is not different object, some are repeated, are 2m that is one kind, 2a of second kind, 2t that is 2 or third kind, identical. So in this case, total number of arrangements, and it is asked that find the probability that 2m's come together. So if we consider 2m as one object, so total there is 10, okay, and then the number of arrangements in which 2m's come together equal to 10 फैक्टोरियल 2m एक, लेकिन फिर भी m तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन a और t तो डिफरेंट और आइडेंटिकल रिपीट कर रहे हैं. सो दिस इज 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. Therefore, the probability that 2m's come together equal to favorable cases, that is this 10 factorial upon 2 factorial 2 upon this is, so divided and that is multiplied 2 factorial 2 factorial 2 factorial upon 11 factorial. So this is cancel out, becomes 11 only, 2 cancel out, 2 upon 11, 2 upon. अगर इसी में पूछ देते कि 2m एक साथ ना आए, then 1 minus 2 upon 11, so it will be 9 by 11. Okay, so there may be many problems in object repeated, as in case of birds or numbers. In numbers, number are formed from digits. So these are application of permutation. Okay, and next we will discuss application of combination, that is where we need of selection. Combination means selection, जहाँ selection की arrangements की जरूरत है, different arrangement, different order में रख करके निकालना है, it means permutation. और अगर हमें selection करना है तो इसका मतलब combination. Okay, so we now discuss some problems of probability in which we use concept of combination. The first example of that, a bag contains 8 red, 3 white and 9 blue balls. If 3 balls are drawn at random, determine the probability that there may be many cases, some of them are here. All the 3 balls are blue, 2 are red and 1 white. All the balls are of different color. Very important example. And there may selection 3 total, there is 8 red and 3 white and 8 blue. Total balls are equal to 11 and 9 blue, 9 20. Okay, and 3 balls are drawn. किससे? 3 बॉल निकालनी है, कितने में से? 20 में से, यानी सिलेक्ट करना है आपको. सो 3 balls out of 20, okay, can be drawn in 20C3 ways. कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 20C3. मतलब चूंकि
टोटल 20 वॉल्स हैं, उनमें से 3 निकालनी है, तो टोटल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिंपल टोटल, उसके बाद 3 हमें ड्रॉ करनी है। तो 3 कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं, 20C3। ओके, अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहला पार्ट है ऑल द 3 वॉल्स आर बिलो, सो यानी वी हैव टू डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 वॉल्स आर बिलो, मतलब तीनों वॉल्स जो है आपकी बिलो होनी चाहिए। तो बिलो कितनी है यहाँ पर, 9, मतलब इन्हीं में से आएगी। अब इनमें से 3 लेंगे तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बेस टू ड्रॉ 3 बिलो equal to 9C3. Okay, so in the first case the required probability is favorable cases, that is 9C3 upon 20C3. Okay, we can simplify 9C3 and 20 and then we get exact figure. And in the second 2 are red and 1 white. Okay, 3 walls, उनमें से 2 आपकी रेड होनी है और 1 वाइट हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड कितनी है हमारे पास 8, इनसे 2 लेना है, वाइट कितनी है 3, इनसे हमें 1 लेना है, बीच में क्या लगा है एंड। तो एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर एक ऑपरेशन m तरीके से परफॉर्म हो रहा है और साथ में दूसरा n तरीके से, तो दोनों ऑपरेशन m इंटू n तरीके से परफॉर्म होंगे। सो इन केस ऑफ सेकेंड, सॉरी, देयर नंबर ऑफ बेस, तो कॉमन है आपका नंबर ऑफ बेस टू ड्रॉ 3 balls out of 20 equal to 26, ये तो अपने रहेगा। सेकेंड में क्या है 2 रेड, तो 2 रेड कितनी है 8, 8 में से 2 कितने तरीके सेलेक्ट करेंगे 8C2, और एक आपको वाइट कितनी है 3, तो 3 में से एक कितने तरीके से 3C1, दोनों एंड लगा है, दोनों ऑपरेशन होना एक साथ, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से इनटू। सो दीज आर फेवरेबल केसेस एंड दीज आर टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल केसेस, दैट इज 8C2 into 3C1 upon 20C3. This is the probability to draw 2 reds and 1 white wall. Third is all the walls are different color. 3 wall 3 colors, यानी एक रेड की हो, एक वाइट हो और एक आपकी ब्लू वॉल हो। तो इसमें एक एक लेना है तीनों से, क्लियर है। जैसा कि अभी आपको इसमें सेकेंड बताया कि एक बॉल लेनी है, एक रेड, तो उस 8 में से, सो 8C1 एंड एक ही आपको 3C1 और एक ब्लू बॉल लेनी, दैट इज 9C1। एंड लगा हुआ है तो बाई मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आर सच 8C1 into 3C1 into 9C1. These are favorable cases for the third event, and total number of base 20C3. Therefore, required probability is 8C1, that is 8 3 into 9 upon 20C3. Simplify it, we get just result in this case. That is simplest form, but concept will be same. And there may be other questions in the same problem. At least 2 white, at least 2, at most 2 red or white. Anyway, so we try, हम सभी लोग कोशिश करेंगे और सबको करना है
इस तरीके की प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, समझें। मेनली जो कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है आपकी, वो आपकी सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम वो इस तरीके की होगी, वन बैग आर अनकंटेन सम डिफरेंट कलर बॉल है, और या फिर प्लेइंग कार्ड्स है से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या देयर इज सम नंबर्स, सेलेक्ट 2 or 3 numbers and which are even or odd or divisible by any, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी प्रोबेबिलिटी की, वो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन बेस्ड होंगी, और उसमें हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ application of combination. The 4 cards are drawn at a random from a pack of 52 playing cards. Find the probability that getting all cards of spade. पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे, आपको नोट्स में भी बताया है उसकी डिटेल। देयर इज 4 सूट्स, स्पेड, डायमंड, हार्ट एंड क्लब, 4 सूट होते हैं, और उसमें स्पेड और सभी के 13 कार्ड्स होते हैं, और उन 13 कार्ड्स में हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 3 फोटो कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक, ये फोटो कार्ड कहलाते हैं। 4 ऑनर्स कार्ड, अगर इसी में हम एस इक्के को जोड़ लें एस, तो ये आपका 4 ऑनर कार्ड हो जाते हैं, और रिमेनिंग जो 9 कार्ड्स हैं वो नंबरिंग आपका हो गया, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये डेजिग्नेशन होंगे, उस पर नंबर्स होंगे अप टू 10। 9 कार्ड्स नंबर एंड 3 फोटो, 1 इज 13 इन ईच। तो वो कह रहा, तो पहले तो कितने टोटल कार्ड्स हैं 52, कितने निकालने हैं 4, तो 52 कार्ड से 4 कार्ड कितने तरीके से निकाल सकते हैं इन दिस प्रॉब्लम। सो 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स इन 52 C4 ways, that is total number of ways to draw 4 cards out of 52 cards equal to this। अब वो कह रहा है पहले केस में सभी स्पेड हो, स्पेड का मतलब एक ही उसके स्पेड, दैट इज पर्टिकुलर काइंड स्पेड, एंड देयर 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड। सो इस चारों स्पेड को इसे 13 से सेलेक्ट किया जाए, उन 13 से, क्योंकि स्पेड के 13 कार्ड हैं तो 13 से सेलेक्ट किए जाए। सो दे आर फेवरेबल केसेस इन फर्स्ट, फेवरेबल केसेस इक्वल टू 13 C4, therefore required probability is 13 C4 upon 52 C4। सेकेंड में क्या है, ऑल द कार्ड्स ऑफ द सेम सीट, इसके मतलब एक ही तरीके के हो। 4 सीट होते हैं, आपको बताया, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, तो एक ही हो। अब किसके ये नहीं बताया गया है, जैसे पहले केस में क्लियर हो गया कि स्पेड के हैं 13 कार्ड देयर। अब इसमें कह रहा सेम सीट के हो, तो यानी पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि 4 में से कोई एक हो सकता है। तो पहले तो हम सीट सेलेक्ट कर रहे हैं 4C1, ओके। सो फेवरेबल केसेस हियर, फेवरेबल केसेस इक्वल टू, पहले हम 4 में से एक सीट सेलेक्ट करें 4C1, और फिर उस सीट से 4 कार्ड 13C4, दिस फॉर सेकेंड कार्ड। यहाँ पर्टिकुलर था आपका, तो समझने की कोशिश करें सभी लोग, पर्टिकुलर है, दैट इज नेम इज गिवन स्पेड, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया एक ही सेम मतलब सीट के हों, और वो हैं 4 आपके पास सूट,
तो पहले आप सूट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस सूट से 4 कार्ड सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो फेवरेबल केसेस दिस, टोटल नंबर ऑफ केसेस वही रहेंगे आपके, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स हैं, 4 निकाले गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 52 C4। Therefore, in this case, the probability is 4C1 into 13C4 upon 52C4. Okay, simplify it. And in third part, 2 are kings and 2 are aces. 2 are kings and 2 are aces. So if सभी लोगों को क्लियर होगा आपकी जानकारी, 4 किंग्स होंगे टोटल 52 कार्ड्स में, 4 ही एसेस होते हैं, लेकिन 2 किंग चाहिए, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। इन केस ऑफ थर्ड 4 किंग्स से 4C2, 4 एसेस 4C2 एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उनका, तो ये हो गए आपके फेवरेबल केसेस। सो इन दिस केस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4C2 into 4C2 upon 52C4. This is, and in fourth part, all the 4 cards of the same number. Okay, this is also important. मतलब एक ही नंबर के हों सभी चारों, चाहे चारों एसेस हो, चाहे चारों किंग्स हो, चाहे चारों 2 वाले नंबर से या 10 वाले नंबर, सब एक। तो ऐसे कितने नंबर बनते हैं? 13, 2 के 4, 3 के 4, 4 के 4, 5 के 4, 6 के, 7 के 4, 8 के 4, 9 के 4, 10 के 4, फिर 4 जैक, फिर 4 क्वीन, फिर 4 किंग, फिर 4 एसी। तो ऐसे बनते हैं 13। उन 13 में कोई भी हो सकता है। फोर्थ केस, या तो आपका 2 वाला चारों आ जाए, या आपके 3 वाले हो जाए। इसमें हम लोग सैंपल स्पेस भी यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन तो यूज कर ही रहे हैं। 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52, वो तो ये हो ही गया। उसके बाद फेवरेबल चेक करने के लिए 2 2 3 3 और ऐसे डॉट डॉट अप टू 10 10 10 10, और फिर आपका जैक जैक जैक, फिर आपका क्वीन का हो गया, क्वीन 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 एंड किंग किंग किंग, चारों एक ही नंबर के। नंबर में मतलब ये रेगुलेशन भी आते हैं। और या फिर एसिस ए ए ए, तो 2 2 10 9 10 11 12 13, मतलब इनमें से कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है सेम नंबर के लिए। सो फेवरेबल केसेस आर 13। सो इन दिस केस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज 13 upon 52C4, 52C4। टोटल नंबर ऑफ बेस वही रहेगा, क्योंकि 4 कार्ड्स निकाले गए। फेवरेबल में अकॉर्डिंग टू इवेंट, इवेंट क्या है उस इवेंट के अकॉर्डिंग फेवरेबल केसेस होते हैं। ये बहुत ध्यान से सुन लें। तो फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस आर आउटकम्स, फिर उसके बाद जो फेवरेबल होंगे वो इवेंट क्या है उस पर डिपेंड करेंगे। तो हम लोगों ने कुछ इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स ली। प्रॉब्लम एक ही थी हमारी, लेकिन कार्ड से रिलेटेड थी, लेकिन बहुत से क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं इस तरीके के, और वो हम लोगों ने कंसीडर किया। और भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम अरेंजमेंट की है, जैसे आपका 100 से 1 से लेकर के और 200 तक नेचुरल नंबर्स हैं सपोज करिए, और उसमें एक से लेके 200 तक, 200 नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स हम कह सकते हैं,
and there we select, suppose 3 or we can say one integer. One integer is selected out of first 200 integers. What is the probability that it is divisible by 6 or 8? 6 और 8, एक इंटीजर सेलेक्ट किया गया, फर्स्ट 200 इंटीजर्स में से एक इंटीजर सेलेक्ट किया गया और वो 6 या 8 से आपका क्या हो, डिविजिबल हो। चलिए इसको हम आपको उसमें बताते हैं, एडिशन थ्योरम बताएंगे तब बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसी में बताएंगे तो दो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट वी कंसीडर एग्जाम्पल 12 balls are distributed among 4 boxes. Find the probability that the first box contain 3 balls. अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी किस सेंस में, इसमें हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का यूज करेंगे। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसमें सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों की जरूरत होती है। तो 12 balls को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना, 4 boxes में, ठीक। और प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि पहले बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स कंटेन 3 बॉल, उनमें केवल 3 ही हो। ओके, तो हम 12 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, परमुटेशन का ही है कि पहली बॉल को हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 4, किसी बॉक्स में रख दें। ऐसे दूसरी बॉल को भी हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 4, तीसरी को भी 4, ठीक है। यानी सभी, each ball can be put in 4 boxes in 4 ways. So 4 into 4 into 4 till 12 times. So number of ways to distribute 12 balls among 4 boxes equal to 4 raised to power 12, क्योंकि पहले के भी 4 तरीके, दूसरे की 4 इंटू होता चला जाएगा 12 तक, यानी 4 इंटू 4 12 टाइम, दैट इज 4 पावर 12। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए कि हम 12 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका तरीका विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब बात आती है कि वो कहता है कि पहले बॉक्स में 3 बॉल्स हो। अब पहले बॉक्स में 3 बॉल्स हो, कितने में से, 12 में से, तो कौन सी 3 है ये भी नहीं पता है। तो पहले हम 3 बॉल सेलेक्ट करेंगे। 3 balls कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 12 balls, 12C3, 12C3। ओके, उसके बाद बची कितनी बॉल्स आपके पास, 9। आपने मान लो 12 3 सेलेक्ट की और पहले बॉक्स में रख दी। अब आपके पास बची कितनी, 9 बॉल। अब उनको कितने में रखना है, 3 बॉक्सेस में। पहले में तो आपने रख दी 3, हो गया काम। अब रिमेनिंग जो 3 रखने के बाद टोटल 12, उसके बाद बची 9 को फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है रिमेनिंग 3 बॉक्सेस में। तो रिमेनिंग 9 बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among remaining 3 boxes in 3 raised to power 9 ways। क्योंकि हर जितनी भी बॉल है उनको रखने के 3 बॉक्स हैं, तो 3 तरीके हैं, 9 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 पावर 9। अब ये ऑपरेशन दोनों एक साथ होंगे तब कंप्लीट माना जाएगा ये कि पहले बॉक्स में 3 बॉल्स है। पहले 3 बॉल्स ले ली गई, फिर बची हुई जितनी रिमेनिंग बॉल्स हैं रिमेनिंग बॉक्सेस में। तो ये आपके फेवरेबल केसेस हो गए, फेवरेबल केसेस, इसको समझना है। दीज आर फेवरेबल केसेस, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज favorable cases upon total number. Favorable is this 12C3
into 3 raised to power 9 upon 4 raised to power 10. This is the concept where we use both. This is the according arrangement or distribution arrangement, same thing. So this is permutation, repeated permutation, and there's also combination and permutation. So such types of problem are very important, in which both concepts be used, permutation as well as combination. Okay, so there may be many problems, simple problems, and in the next lecture we will discuss addition law, conditional probability and multiplication. Okay.